Hello friends, today I am going to talk about the scheme of examination for direct recruitment to the post of Assistant Registrar, post code 10P1002, and the other exam which we have to prepare is for the examination for direct recruitment to the Junior Assistant code, post code P0201 and Junior Assistant Store, post code P0203. What will be the examination pattern, scheme of examination, how many questions will come, what are the area which you have to focus, and how you have to prepare for exam. All these things I am going to discuss now. So first of all, you please try to understand. I am talking about the assistant registrar. How you, there are recruitment post has been advertised for the Delhi University, and the post of assistant registrar. The exam is going to held very soon. So we are preparing for this exam. Now let me just talk about the scheme of examination, the component of written test and the syllabus. सो आज के वीडियो में हम एग्ज़ाम का जो स्कीम है वो कैसे होगा और कौन कौन से चीज़ें हैं जो आपको रिटन टेस्ट के लिए तैयार करनी है और इसका मेन सिलेबस क्या है, मैं यही सारी चीज़ें आपको डिस्कस करूँगी. नाउ प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, लिसन केयरफुली एंड व्हाट देयर आर फॉर द असिस्टेंट रजिस्ट्रार you will be having two papers. One is MCQ type 150 questions. This would be considered paper 1, and descriptive paper 2. Both the time for the exam will be 2 hours. So for question number 1, paper 1, you will find 2 hours time, and paper 2, which is descriptive, you will find 2 hours. Maximum marks allocated for the paper 1 and paper 2 are 150 each, and after that when you qualify both the paper 1 and paper 2, after that you have to appear for personality test, that is interview. Now 15 minutes extra per hour would be given to visually handicapped, cerebral palsy candidates or similar placed candidates for PWBD category. What are the components of the test you have to prepare? For the general studies, test for the general studies is educational administration and management. Number of questions will be 150. Marks, there are paper 2, again I am talking about paper 1 and paper 2. Paper 1 will be test of general studies, 150 questions, and marks will be 150. Paper 2 is educational administration and management, again 150 questions and 150 marks. So in all, for paper 1 and paper 2 you have to appear for 300 marks. Now let's me come to the syllabus. The paper 1 test of general studies MCQ type. What is the syllabus? Syllabus आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है. अगर आप सिलेबस को ध्यान से पढ़ लेते हैं और उसके कंटेंट को स्पेसिफिकली समझ लेते हैं तो आपके लिए एग्जामिनेशन की तैयारी करना बहुत आसान हो जाएगा. और मैं आपको इसमें स्पेसिफिक जो एरिया है जो आपको टच करने हैं, जो आपको याद करने हैं, समझने हैं, वो मैं आपको बताती हूँ. क्वेश्चंस विल बी डिजाइन टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स जनरल स्टडीज, दैट इज जनरल साइंस. जनरल साइंस पे फोकस करना है, जैसे कि जनरल साइंस में जो नॉर्मल ऑर्डिनरी साइंस होती है, फॉर एग्जांपल हार्ट कैसे काम करता है, रेस्पिरेशन कैसे काम करता है, नॉर्मल वायरल या डिजीजेस, जो कॉमन चीज़ें हैं जो हम सबको समझने की ज़रूरत है, चाहे आपने बहुत ज़्यादा साइंस पढ़ा है या नहीं, लेकिन कॉमन चीज़ें हैं जो इंसान को स्वस्थ रखने के लिए या इंसान के शरीर से संबंधित जो चीज़ें हैं जो ज़रूरी है जानने के लिए, उन सब बातों के बारे में आपको पूछा जाएगा. और ये साइंस का पार्ट होगा. करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, खास तौर पे वो करंट इवेंट्स जो हमारे देश से संबंधित है, जैसे कि मान लो देश ने, हमारे कंट्री ने कोई न्यूक्लियर टेस्ट किया, या कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ, या कोई नई चीज़ इन्वेंट की, या उस नई चीज़ से हमने दुनिया को प्रभावित किया.
इस तरह से करंट इवेंट्स में जो नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के लिए है, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऐसी इवेंट हुई जो इन जनरल ज़्यादातर लोगों को प्रभावित करती हो, इस तरह के करंट इवेंट्स को आप फोकस कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारत का इतिहास जो कि हमें जानना ज़रूरी है। भारत के इतिहास में जो ज़रूरी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स है और इससे रिलेटेड आपको किताबें भी मिल जाएगी। और नेशनल इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो कि किस तरह से इंडियन नेशनल मूवमेंट पूरा चला, कौन कौन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, क्या क्या मेन इवेंट्स रहे, क्या क्या उसके आउटकम्स रहे, ये सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडिया की जियोग्राफी बहुत ज़रूरी जानना है। इंडिया का फिजिकल, पॉलिटिकल, जियोग्राफिकल सारा आपको जानना ज़रूरी है। और वर्ल्ड जियोग्राफी जो कि खास तौर पे कहीं ना कहीं हमारे देश से संबंधित है। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम या कोई करंट इवेंट्स हैं जो कि पॉलिटिकली कुछ नए बिल पास हुए हैं या कोई नया इवेंट हुआ है पॉलिटिक्स में, कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई है, इस तरह से हम उसके करंट में जा करके और बेसिक फंडामेंटल चीज़ों को भी हमें जानना ज़रूरी है। इंडियन इकोनॉमी में क्या चेंजेस आए हैं, क्या थोड़ा सा पास्ट से रेलेवेंस है, क्या प्रेजेंट में चल रहा है, क्या फ्यूचर पर्सपेक्टिव है, ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी। और जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी का जो एक जनरल स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है वो सब आपको फॉलो करना है। मैं आपको फिर से पेपर 1 के बारे में जो जनरल स्टडीज़ का MCQ टाइप जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ABCD होगा, वो आपको एक कोई टिक करना है, वो मैं आपको फिर से बता रही हूँ। क्वेश्चंस विल बी डिजाइन टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स जनरल स्टडीज, दैट इज जनरल साइंस, current events of national and international importance, history of India and Indian national movement, Indian and world geography, Indian polity and economy, general mental ability. Questions on the general science will cover general appreciation and understanding of science, including matters of everyday observation and experience, as may be expected of a well-educated person who has not made a specific study of any particular scientific discipline. जो एक जनरल साइंस में हमें जो खास तौर पे नॉर्मल चीज़ें जो जानना, जैसे कोरोना चल रहा है तो कोरोना कैसे फैलता है, कोरोना को कैसे बचाव होता है, कोरोना का वैक्सीन किस तरह से काम करेगा, क्या इसके फेजेस हैं, एक वैक्सीन लेने के बाद दूसरे वैक्सीन में कितना टाइम है, क्या इसका प्रोसीजर है, या इसका किस तरह से आप ये इस डिजीज़ के बारे में कि ये कंटेमिनेटेड है या कैसे फैलती है, किस तरह से इसको रोका जाए, एक जो जनरल अवेयरनेस हमें जानने की ज़रूरत है, उसी तरह का साइंस से रिलेटेड हमें क्वेश्चन जानने की ज़रूरत है। इन करंट इवेंट्स नॉलेज ऑफ सिग्निफिकेंस नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स विल बी टेस्टेड। और करंट इवेंट्स में इंडिया में और दुनिया में जो नई चीज़ें हुई है उनको हमें, जो कि हम खास तौर पर हमारे देश से संबंधित है, वो सारी चीज़ें जानना भी ज़रूरी है। In history of India, emphasis will be on the broad general understanding of the subject in its social, economic and political aspect. इतिहास का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक महत्व क्या है, या इतिहास में ऐसी घटनाएं जो समाज से संबंधित रखती हो, अर्थव्यवस्था से संबंधित रखती हो, या उससे हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में कोई चेंज या कुछ उससे संबंधित रखती हो। Questions on the Indian national movement will relate to the nature and character of the 19th century resurgence, growth of nationalism and attainment of independence. इंडियन नेशनल मूवमेंट जब आप तैयार करते हैं तो आपको किन चीज़ों पे फोकस करना है, वो है कैरेक्टर ऑफ द 19th सेंचुरी रिसर्जेंस, 19वीं शताब्दी में किस तरह से एक नए मूवमेंट की शुरुआत हुई या रिसर्जेंस हुआ, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, किस तरह से भारत ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और स्वतंत्रता को प्राप्त किया, या किस तरह से नेशनलिज्म और राष्ट्रवाद की समझ आई, उसकी शुरुआत हुई और किस तरह से इसको लोगों ने समझा और अपने जीवन में उतारा। In geography, emphasis will be on the geography of India. Questions on the geography of India will relate to physical, social and economic geography. Geography के अंदर आपको physical geography पे फोकस करना है, India and world, social geography पे फोकस करना है, India and world, economic geography पे फोकस करना है, India and world, including the main features of Indian agriculture and national resources. और हमारे देश में हमारे देश का एग्रीकल्चर, हमारे देश की
एग्रीकल्चर किस तरह से, उसका नेचर क्या है, उसकी एस्पेक्ट्स क्या है, उसके डायमेंशंस क्या है, वो सारी चीज़ें। और नेचुरल रिसोर्सेज इंडिया में किस तरह से जोग्राफिकली नेचुरल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये स्टेट वाइज अलग हो सकता है, ये डिवीजन जोग्राफिकल डिवीजन के हिसाब से अलग हो सकता है, और इस तरह से हमें इसको समझना है। Questions on Indian polity and economy will test knowledge of the country's political system and Constitution of India. एक बात आप ध्यान रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की एक छोटी सी किताब पब्लिश है यूनिवर्सल पब्लिकेशन से, आप उसको पढ़ सकते हैं, एक दिन में पढ़ के ख़त्म की जा सकती है, लेकिन ये बुक आपको काफ़ी सारे समझ और काफ़ी सारा कॉन्फिडेंस दे जाएगी आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड। उसके बाद पंचायती राज, जो कि एक बहुत अच्छा बिल्कुल डाउन लेवल पे डेमोक्रेटिक सिस्टम जो इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में, उसके चलते किस तरह से इंक्लूसिव पॉलिसीज पॉलिटिक्स में हुई, उसका हमें समझ ज़रूरी होनी चाहिए, और इसको आप पंचायती राज के उसमें समझ सकते हैं। सोशल सिस्टम एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, किस तरह से सामाजिक ढांचा, सामाजिक व्यवस्था हमारी है, बन रही है, या उसमें बदलाव आ रहे हैं, और किस तरह से अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था किस तरह से है, कैसी थी, क्या है, और इसमें किस तरह से बदलाव आ रहे हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी में द कैंडिडेट विल बी टेस्टेड ऑन रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। कुछ भी नॉर्मल बेसिस पे आप जो रीजनिंग लगा सकते हैं या मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस आप इससे रिलेटेड कर सकते हैं। पेपर 2 में आपका एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट होगा। ये पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा, इसमें आपको हाथ से आंसर लिखने हैं, सब्जेक्टिव आंसर लिखने हैं। मैं फिर से बताती हूँ, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट डिस्क्रिप्टिव होगा ये पेपर 2। द क्वेश्चंस विल बी डिजाइन टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स नॉलेज एंड अवेयरनेस ऑन हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। हमारे भारत की उच्च शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान रहेगा। रेगुलेटरी बॉडीज एंड रीसेंट डेवलपमेंट इन फील्ड, उच्च शिक्षा में कौन कौन सी अथॉरिटीज़, रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जो काम करती हैं, और किस तरह से इसमें बदलाव आ रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और बेसिक कॉन्सेप्ट शिक्षा के या एडमिनिस्ट्रेशन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट, क्या किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चलता है भारत में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चलता है, उसको समझना, उसका पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, हायरार्की, यूनिटी ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में नीचे से लेके ऊपर तक एक सिस्टम जनरेट होता है, किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और काम का डिवीजन होता है, किस तरह से अथॉरिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किस तरह से एक विभाग दूसरे विभाग से कोऑर्डिनेशन करता है, किस तरह से सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम वर्क करता है, डेलीगेशन किस तरह होगा, सुपरविजन किस तरह होगा, लाइन कैसे होगा, स्टाफ कैसे होगा, ये सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन, पे स्केल, सर्विस कंडीशंस, यूनियन मैनेजमेंट रिलेशनशिप, क्योंकि आप जब रजिस्ट्रार या जूनियर रजिस्ट्रार की पोस्ट पे जाते हैं तो आपको जो विभागीय कार्य है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंटल वर्क्स जो होते हैं, उनमें आपको रिक्रूटमेंट से रिलेटेड काम करना पड़ता है, ट्रेनिंग से रिलेटेड, प्रमोशंस, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रमोशंस चल रहे हैं, तो प्रमोशन किस तरह से होगा, क्या इसके क्राइटेरिया है, क्या क्या चीज़ें हैं, इसके लिमिटेशंस क्या हैं, इसके फंडामेंटल्स क्या हैं, पे स्केल किस तरह से है, और सर्विस कंडीशंस क्या होती है, यूनियन मैनेजमेंट रिलेशनशिप। तो ये आपको पेपर 2 में एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, उसमें आपको ध्यान रखना है। खास तौर पे मैं फिर से रिपीट करती हूँ, इसमें नॉलेज एंड अवेयरनेस ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, हायर एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान देना है, उसकी रेगुलेटरी बॉडीज एंड रीसेंट डेवलपमेंट इन द फील्ड, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजेशन, हायरार्की, यूनिटी ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, and coordination, centralization, decentralization, delegation, supervision, line and staff. Personal administration including recruitment, training, promotion, pay scale and service conditions, union management relationship. Financial administration including budget, formulation and execution of budget. एक इंस्टीट्यूशन में जब आप काम करेंगे तो उस इंस्टीट्यूशन का बजट कैसे फॉर्मुलेट होगा, उसका फॉर्मुलेशन और एग्जीक्यूशन ऑफ बजट किस तरह होगा, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होगा, एप्लीकेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ITC एंड अदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन यूनिवर्सिटी सिस्टम।
पर्सनालिटी टेस्ट में आपको देना है. द इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट shall be conducted in such a manner that candidates suitability for the post is probed among other things through academic qualification, relevant experience, extracurricular activity, general awareness / knowledge, communication and problem solving skill, and other personality, etc. So when you have qualified paper 1 and paper 2, after that you will be, the merit will be generated and then you will be called for the इंटरव्यू में जब आप जाते हैं तो ये देखा जाएगा कि किस तरह से आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है, किस तरह से आप एक इंक्लूसिव पॉलिसीज़ के तहत काम कर सकते हैं, क्या आपके डायमेंशंस है या डायनामिक पर्सनालिटी है जिसमें कि एक डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में आपका डिसीजन मेकिंग किस तरह होगा, आपका मैन पावर हैंडलिंग किस तरह से होगा, वर्क प्रेशर कैसे मैनेज करेंगे, आप एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह से अपना काम करेंगे और किसी भी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में आप किस तरह से काम मैनेज कर लेंगे, ये सारी चीज़ें आपका देखा जाएगा. मैनर्स एंड मोड ऑफ ड्राइंग फाइनल मेरिट लिस्ट. द क्वेश्चन पेपर वुड बी बायलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश में पेपर होगा एंड एप्लीकेंट विल हैव द ऑप्शन टू रिस्पॉन्ड इन ईदर of the language, या तो आप हिंदी में आंसर दें या इंग्लिश में. However, the same medium of language must be used throughout. The questions in the written test will be of the level of degree diploma examination, which is defined as the minimum eligibility for the respective post. The minimum qualifying marks for the paper 1 and paper 2 separately shall be 45% for the open post, 40% for the reserve, that is OBC category, 35% for the SC, ST, PWD category. If the number of candidates qualifying is more than 30 times the advertised post, the merit list would be restricted to 30 times the advertised post. So in this way you have to know about this. Now बेसिक जो आपको जो क्वेश्चंस आपको करने हैं उसमें आपका बेसिक समझ क्या होनी चाहिए. टॉपिक्स आपका इस तरह से हो गया. बेसिक नॉलेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड वर्किंग ऑफ इट्स पॉलिटिकल सिस्टम. ये 30 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस ईच आएंगे और 10 क्वेश्चंस आएंगे. बेसिक नॉलेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन 20 मार्क्स होंगे. 2 क्वेश्चन इंटू 10, 2 मार्क का क्वेश्चन होगा, 10 क्वेश्चन होंगे. तो इसका मतलब है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन पे 10 क्वेश्चन होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पे आपको 30 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे. हायर एजुकेशन पे आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे. नॉलेज एंड एप्लीकेशन ऑफ द ऑफिस प्रोसीजर रूल एंड रेगुलेशन पे 30 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे. हिंदी इंग्लिश विद स्पेशल रेफरेंस टू स्किल इन नथिंग नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग पे 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे. सिचुएशन टेस्ट ऐसे वेयर द कैंडिडेट्स रिएक्शन वुड बी सॉर्ट ऑन गिवन सिचुएशन टेस्ट में 25 मार्क्स होंगे. नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड स्पेशल रेफरेंस टू नॉलेज ऑफ word process data analysis package would be of 25 marks. So in all there would be 50 marks that you have to prepare. उसके अलावा जूनियर असिस्टेंट जो कि स्टोर के लिए है, पोस्ट कोड P0203 है, इसमें भी वही आपका पेपर 1 पेपर 2 the paper 1 MCQ that is 3 hours, paper 2 essay and comprehension test is 1.5 hour and total पेपर 1 में आपको 200 क्वेश्चंस होंगे and paper 2 में आपको 100 questions होंगे. In all there are 300 questions. 5 minutes extra per hour would be given to the visually handicapped cerebral palsy candidate or similarly placed candidate from PWD category. और टेस्ट में आपको जनरल अवेयरनेस पे 50 क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग एबिलिटी पे 50 क्वेश्चंस, मैथमेटिकल एबिलिटी 50 क्वेश्चंस, लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी 50 क्वेश्चंस. सो टोटल देयर विल बी 200 क्वेश्चन. ईच क्वेश्चन विल बी मार्क 1. So test components में आपका पेपर 2 में essay, comprehension and letter writing that is 100 mark and 100 mark for the same question, same paper. Skill test में आपका on spot typing होगा. Qualifying speed shall be at least 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi, which will be tested as a computer on the computer. PWD candidates far from complete examination
Exemption for type test is provided as per guidelines issued by central government will be exempted from the skill test. और इस तरह से इसमें जनरल अवेयरनेस होगा पेपर 1 में, रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी एंड टेस्ट ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी. और पेपर 2 में आपका ऐसे कॉम्प्रिहेंशन एंड लेटर राइटिंग विच इज एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू इंग्लिश. एंड स्किल टेस्ट में आपका द टाइप टेस्ट शैल बी स्किल टेस्ट विच शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर एंड नो एडिशनल सर्टिफिकेट क्रेडिट्स फॉर द सेम शैल बी एलोकेटेड. अब मैं जनरल अवेयरनेस में आपको क्विकली सारा समअप करके बता देती हूँ. इसमें 3 चीज़ें हैं, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी एंड मैथमेटिकल एबिलिटी. जनरल अवेयरनेस में questions will be designed to test the ability of the candidate's general awareness of the environment and its relevance to the society. The question will also be designed to test knowledge of the current events and such matters of everyday observation as may be expected of an educated person. The test will be included questions relating to the India and our neighboring countries, especially pertaining to history, Indian polity, constitution, art and culture, geography, economics, general policy, science and scientific research, national/international organizations/institutions and events etc. Reasoning ability में आपका होगा the syllabus include questions of both verbal and non-verbal type. Test में include questions on analogies, similarities, differences, space, visualization, problem solving, analysis, judgment, decision making, visual memory, discrimination, observation, relationship, concept, arithmetical reasoning, verbal and figure classification, arithmetical number series etc. Mathematical ability में आपका होगा the test will cover number system including questions on the simplification, disclaims, fractions, LCM, HCM, ratio and proportion, percentage, average, profit and loss, discount, simple and compound interest, mensuration, time and work, time and distance, table and graphic etc. Test of English or Hindi. In addition to the testing of candidates' understanding of the English or Hindi language, its vocabulary, grammar, sentences, structure, synonym, antonym and its correct uses etc. would also be tested. Paper 2, Essay and Comprehension and Letter Writing. The test is meant for testing the capability of correct uses of the language, where the candidate should be assessed through essay writing, comprehension, letter writing and situation test, analysis etc. Skill test में आपका finally it will be extra. So in this way today I wind up here only how you have to prepare for your exam when you are going for the specific paper 1, paper 2. Then you have to be aware about the subject and the specific topics only. There is no need to go in detail. बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. जो टेस्ट स्पेसिफिक है उन्हीं चीज़ों को फोकस करना है और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छी तरह से क्वालिफाई कर सकते हैं.